लद्दाख की हालातें हाजिरा की सच्ची Roll. During Kargil, apex body lane KDA Kargil miske parla totul jaspason I pera Francesco KDA na apex parla eu deamna ngaja parla pera tan dukten inna I tokse pera jaspa che juna inanga apex and KDA members sangi gapi itokse meeting gastayan tuz branches tene son tempi tene inanga mancha tene kontul successful mata jun prospera tantesko tasta mata domicile rona ya spera chiknishi mata khati hotono tebo masme shtomo munjuk yang tene spera tamala 20 में बचेस पर मुझे हमने वेलकम चेस्टन कासु जुस्टिन inna 이방 장례 경호 축시에 되는 이런 상황을 또 오셨고 또 먹고 볼 때문에 아까 때문에 센트럴 거는 스테라타 먹고 케베카 장례 경호 축 그냥 가제 때 오래왔죠 때문에 영체산에 때문에 20 में स्पेरा छचे से हम देना 때문에 मा तुस 먹고 볼 먹어라 때문에 도미사일 나야 스페라 되나오나 리미티드 lakma guspete o gloksa mata chattanste tene pesam tene kenla mata 상매성 각자는 mata dokton tampogo mata state food maslabo ma masla chimono masla nispago mata safeguard maslano tene te niske kamaje focus choches ika samme chattan chiejuna tamshik mata rewa yopini employment escala do spa até tanto se teve na tusma gordison tene ina amma manko je goradna tene ngaje gomer na teve juche se até tanto tene ngeja nam supa ibe ka consensus nicha tene te ka shumste maduga tene natame number 1 demand ka go natame statehood in teve ka tene spera churches yang tevang tapchatson tene natame spera gun transform maluzna tene KDA na apex niske tene Ladakh se na mass movement kazuga shulin dashkan bo shulches po takta tam kazuga shulin dashkan beka tene sting me duk se mata takta tam chizno ate kan divini ka takta tam yang spera takta chikte bangso tene I tok se meeting tene matam duk se spera tam chesko dena tene nune samnun dachi na releman chapos KDA na apex parla tebang takchatson yang mane nyanchez med na tene virtually ngata duksta te meeting go choches inna tene par parla ngaje meeting mane macho duksta manpin meeting jun son tempin inna I tokse jaspa meeting go tene ma tus manko jisting son te tebe ka tene samne tapo monchi wazat yang samne te lotun son te o monazat tene ine ama tene deka rampokchik na tut esperata anderkando tene yang spera la blusko tene ye kargai saba jio ko ni era opina amora बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जैसा कि अभी दौरजे साहब चेयरमैन एपेक्स ने आपको डिटेल में बता दी काफ़ी देर के बाद एपेक्स और केडीए की ये जॉइंट मीटिंग हुई फिजिकल मीटिंग हुई जिसमें 4 पॉइंट एजेंडे के इश्यूज को लेकर तफसील डिस्कशंस हुआ और उसमें जो मेनली हमारे 3 एजेंडर्स हैं रिक्रूटमेंट रिजर्वेशन डोमिसाइल पीएससी इसके बाद आपका 6 शेड्यूल और जो टॉप प्रायोरिटी पे हमारी है स्टेटहुड उन पर काफ़ी डिस्कशंस हुआ आप सभी जानते हैं 3 दिसंबर की मीटिंग के बाद 15 जनवरी की मीटिंग के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के होम मिनिस्ट्री के साइडलाइन पे हमारी मीटिंग हुई और उसमें रिजर्वेशन डोमिसाइल पे हमारा इनके साथ बात हुआ जिसमें ऑलमोस्ट 95% जितने भी हमारे सीट्स हैं
वो लद्दाखियों के लिए रिजर्व रहेगा और 5% उन लोगों के लिए होगी जो डोमिसाइल होल्डर्स है। और डोमिसाइल पे भी हमारा क्लियर कट यूनानिमस हमारी डिसीजंस हुई है और ये हमने कन्वे भी कर दिया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कि कट ऑफ डेट 89 है। 89 कट ऑफ डेट है डोमिसाइल के लिए, रिजर्वेशंस 95% और 5% आपके जनरल कैटेगरी के लिए। ये मैसेज हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कन्वे कर चुके हैं, लेकिन उनकी तरफ से आपका 15 मार्च को मीटिंग होनी थी, फिर इसके बाद अप्रैल में डेट देना था, वो भी नहीं हुआ। अब आया है 20 मई को इनकी तारीख हुई है। ये डिले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से हुई है, होम मिनिस्ट्री की तरफ से हुई है, जो हम सोचते हैं कि लद्दाखियों के साथ उनका सही रवैया नहीं रहा है। अगरचे अभी 20 मई की मीटिंग हाई पावर कमेटी की फिक्स हुई है, हम आशावाद हैं, हम बहुत ही उम्मीद रखते हैं कि उस मीटिंग में ये जितने भी इश्यूज हैं रिक्रूटमेंट को लेकर, रिजर्वेशंस को लेकर, डोमिसाइल्स को लेकर, जो हम ऑलरेडी अपेक्स और केडीए इनको कन्वे कर चुकी है, वो फाइनल होकर डॉक्यूमेंटेशंस की शक्ल में आ जाएगी। और इसके बाद जो हमारा मेन इशू है वो है स्टेटहुड फॉर लद्दाख एंड 6th शेड्यूल फॉर लद्दाख। तो 20 मई की मीटिंग में हम ये उम्मीद रखते हैं कि ये सारी रिक्रूटमेंट प्रोसेस के जितने भी चीजें हैं जो कन्वे हो चुका है वो फाइनल होकर डॉक्यूमेंटेशंस होकर इम्प्लीमेंट होंगे। और उसी 20 मई के मीटिंग में जो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी, फर्स्ट डिमांड है, स्टेटहुड पे डिस्कशंस स्टार्ट होगी। साथ ही साथ अभी हम ये बात भी क्लियर करना चाहते हैं कि यूटी एडमिनिस्ट्रेशन, यहां से होम मिनिस्ट्री हमारे एपेक्स और केडीए के साथ बातचीत कर रही है और कंटिन्यूअस बातचीत चल रही है, जिसमें अभी का ये जो मीटिंग का गैप है वो बहुत ज्यादा हुआ है। लेकिन इन बिटवीन हमारी यूटी एडमिनिस्ट्रेशन और स्पेशली चीफ सेक्रेटरी पवन कोतवाल जी साइडलाइन पे, चाहे वो अभी दैनिक वाला प्रपोजल हमने सुना कि ये लाने के चक्कर में है, इंडस्ट्रियल पॉलिसी को लागू करने के चक्कर में है, सोलर पॉलिसी प्लांट्स के नाम पे कुछ लगाने के चक्कर में है, ये सारी चीजें एपेक्स और केडीए को टोटली एक्सेप्टेबल नहीं है। और हमें लगता है होम मिनिस्ट्री के साथ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ जो टॉक्स चल रही है, हम सोचते हैं ये फ्रूटफुल टॉक्स होगी। उस टॉक्स को सबटाज करने की एक कोशिश है ऑन द पार्ट ऑफ यूटी एडमिनिस्ट्रेशन, स्पेशली चीफ सेक्रेटरी के पार्ट में, जो लद्दाखियों को किसी भी कीमत पर एक्सेप्टेबल नहीं है। आज की इस मीटिंग में ये भी क्लियर हमारी यूनानिमस डिसीजंस हुआ कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ जो 20 तारीख को मीटिंग होगी, उस मीटिंग का आउटकम क्या होता है, उस आउटकम में अगर लद्दाखियों के एस्पायरेशंस के हिसाब से वो आउटकम हमें लगता है आ रही है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपनी सिंसियरिटी को और अपनी जो जिस तरह से वो इच्छा जाहिर कर रही है कि हम बहुत कुछ लद्दाख को देने जा रहे हैं, अगर वो रिफ्लेक्ट हुआ तो ये कंटिन्यू होगी। अदरवाइज फिर हमें मजबूर होगा मास लेवल पे पब्लिक को साथ लेकर एजुटेशन करने पे। यह हमारी तरफ से क्लियर मैसेज है और ये हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी कन्वे करना चाहते हैं, मीडिया के जरिए सारे लोगों को भी ये कन्वे करना चाहते हैं। साथ ही साथ हमारी इस ज्वाइंट मीटिंग में ये डिसीजन हुआ है केडीए और एपेक्स का एटलीस्ट वंस इन ए मंथ फिजिकल मीटिंग होगी, एक बार लेह में और एक बार करगिल में, ताकि कमिंग मीटिंग्स के जो आउटकम्स हैं उसके लिए क्या स्ट्रेटेजी बना ले, क्या लायामल बना ले और किस तरीके से अपनी मेन एजेंडा स्टेटहुड एंड 6th शेड्यूल को आगे लेके चले, उसके लिए कंटिन्यूअस हमारी मीटिंग होगी। 1 महीने के बाद फिजिकल मीटिंग होगी, अगर नहीं हुआ तो फिर वर्चुअल हम मीटिंग करके इन सारी चीजों पे डिलिब्रेशंस करेंगे, डिस्कशंस करेंगे और लाहेअमल बना के हम आगे चलेंगे। हमें उम्मीद है कि 20 तारीख की जो मीटिंग होने जा रही है, हाई पावर कमेटी है जिसमें हमारी पूरी एपेक्स और केडीए के सारे मेंबर्स पार्टिसिपेट करेंगे, उसका डॉक्यूमेंटेशंस की शक्ल में रिक्रूटमेंट, रिजर्वेशन, डोमिसाइल, पीएससी, इन सारी चीजों को लेकर
एक फाइनल डिसीजन होगी और वो इम्प्लीमेंट होगा। और उसी मीटिंग में साथ ही साथ हम सबों की एम्फेसिस ये है कि हमारा स्टेटहुड के एजेंडे पर डिस्कशंस हो ताकि ये सारी मैटर रिजॉल्व हो। तो हम उम्मीद रखते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जिस तरीके का रवैया अभी तक अपनाए हुए हैं इसमें से निकल के पॉजिटिवली लद्दाख की स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस को देखकर, लद्दाख की सेंसिटिविटी को देखकर, ज्योग्राफिकल जो पॉलिटिकल हमारी लोकेशंस, इन सारी चीजों को देखकर, जियो पॉलिटिकल लोकेशंस को देखकर लद्दाखियों की जो एस्पायरेशंस है कॉन्स्टिट्यूशंस के अंदर, आपके आइन के अंदर जो डिमांड्स कर रहा है, स्टेटहुड फॉर लद्दाख, 6th शेड्यूल फॉर लद्दाख, रिक्रूटमेंट, रिजर्वेशन, पीएससी, डोमिसाइल फॉर लद्दाखीज, इन सारी चीजों पर पॉजिटिवली कोई कंक्रीट डिसीजंस लेकर लद्दाखियों के एस्पायरेशंस पे खड़ा उतरेगी। और हम ये भी उम्मीद रखते हैं कि हमारी आवाम 2019 के बाद जिस तरीके से एपेक्स बॉडी और केडीए के हर रिक्वेस्ट पे साथ देती आई है, क्योंकि ये डिमांड किसी एक एपेक्स बॉडी का या केडीए का या इंडिविजुअल्स का डिमांड्स नहीं है, ये लद्दाखियों की प्रेजेंट को लेकर, लद्दाखियों की फ्यूचर्स को लेकर, आने वाले जनरेशंस के सारे राइट और सारे हुकूक की प्रोटेक्शंस के लिए डिमांड से और ये एजुकेशन हो रही है। आवाम भी भरपूर तरीके से केडी और एपेक्स के इस डिमांड में साथ दे देगी और हमें उम्मीद है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमें मजबूर नहीं करेगी, सड़क पे आए, एजुकेशन करे, प्रोटेस्ट करे, धरना दे। सर, इससे पहले कुछ खबरें आ रही थी कि एक मिनट, अगर आपका क्वेश्चन से तो थोड़ा सा एमपी साहब बता दें, इसके बाद आप क्वेश्चन से। दोनों चेयरमैन ने यहाँ पे आज के जो मीटिंग का आउटकम, मीटिंग का मकसद जो तफसीलन आप लोगों के सामने रखी। जैसे कि हम सबको मालूम है कि मीटिंग सेटअप होने के बाद लद्दाख के अवाम में जो अच्छात दी हुई अपने फ्यूचर को लेकर, अपने मुस्तकबिल को लेकर, अपने आइडेंटिटी को लेकर, अपने कल्चर को लेकर, उसके बाद पूरे लद्दाख में केडीए बनी, एपेक्स बनी, उसके बाद एहतजाज भी हुई, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ बातचीत का सिलसिला भी चली। लेकिन कहीं ना कहीं पार्लियामेंट्री इलेक्शन से पहले ये जो बातचीत का सिलसिला कहीं ना कहीं रुकी थी। इलेक्शन के बाद सबका एक ये था कि जो ये बातचीत का सिलसिला है जो है वो शुरू हो, क्योंकि लद्दाख के अवाम ने, लद्दाख के लीडरशिप ने हमेशा से ये कहा है कि हम बातचीत के ज़रिए इस मसले का हल चाहते हैं, हम इसमें बिलीव करते हैं। हम बिलीव करते हैं लद्दाख को अमन रखे, लद्दाख में कोई ऐसे हालत पैदा ना हो, क्योंकि लद्दाख के स्ट्रेटजिक जो इम्पोर्टेंस है उसको भी मद्देनजर रखते हुए, और लद्दाख के जो आज तक जो हमारे वर्षा में हमें मिली है कि हमने एक अमन इलाके के तौर पर हमने इसको रखा है, उसको बरकरार रखते हुए हमने यही अनाउंस किया कि हम पीसफुली और बातचीत के ज़रिए हम मसले का हल चाहते हैं। लेकिन बातचीत का सिलसिला एक बार फिर शुरू हुआ, सबने, हम सब लद्दाखियों ने इसको वेलकम किया और वेलकम के साथ साथ एक उम्मीद भी जागा और एक गवर्नमेंट के से एक तवक्का भी रखा कि इस बार की जो बातचीत है तब तक ये ख़त्म नहीं होगा जब तक लद्दाख के आवाम के मुकाबले उनके मसाइल का हल कहीं ना कहीं ना निकले। लेकिन बदकिस्मती से सब कमेटी का जब लास्ट मीटिंग हुआ उसके बाद दूसरे मीटिंग का जो ये था उसमें बहुत गैप हुआ। उस गैप की वजह से हमारे लीडरशिप हो या हमारे लद्दाख के आवाम हो, खासकर हमारा जो यूथ नौजवान तबका है, उनमें एक बहुत ये पैदा हुआ। तो आज कुछ दिन पहले मैं मोहम्मद साहब से भी मिला था, ये सारी चीज़ें उनके सामने हमने रखी थी। एक डेट आज निकला है 20 तारीख को, आज सामने उसका भी वेलकम किया है। लेकिन इस बार अब लोगों ये लद्दाख की आवाम हो या लीडरशिप हो, अगर इस मीटिंग में कहीं ना कहीं कुछ जो हमारे तवक्कात के मुताबिक अगर इसमें कुछ ये नहीं होती है, आगे इसका ये नहीं होती है, तो मुझे अफसोस की ये कहना पड़ रहा है कि इसके बाद, क्योंकि एक हद तक जो है लद्दाख के आवाम जो है वो बर्दाश्त कर पाएगा, लेकिन इससे आगे
जो हमारे अपनी लीडरशिप के हाथ में भी नहीं रहेगा, क्योंकि अगर एक बार फिर, क्योंकि बहुत साल हो गए हमारे नौजवान इतने परेशान हैं, आवाम इतने परेशान है, तो मैं उम्मीद करता हूँ, तवक्को भी है, यकीन भी करता हूँ और गवर्नमेंट से अपील भी करता हूँ कि जो इस बार बैठ रहा है, हम एक मीटिंग हो रहा है, इस मीटिंग से कोई ना कोई नतीजा जो है वो लोगों के सामने आए, लोगों को दिखे, ताकि जो इन्वायरमेंट, जो पीसफुली, जो अमान के जो फिजा जो लद्दाख में बनी है वो बरकरार रहे। अदरवाइज अगर इस मीटिंग से भी अगर कुछ लद्दाख के आवाम को कुछ अगर नहीं दिखता है, तो मजबूरन फिर सड़कों पर आना पड़ेगा, जैसे कि हमारे चेयरमैन गुरु ने बताया है। लेकिन हम एक बार फिर कहते हैं, हम चाहते हैं कि बातचीत के जरिए अमन अमान बरकरार रखते हुए हमारे मसलों का हल निकले। और ये है कि हमें पता है, हमारे जो नौजवान तबके हैं उनकी परेशानी समझते हुए हमने जो रिक्रूटमेंट और बाकी चीज़ें को प्रायोरिटी पे रखा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा बाकी जो 2 एजेंडा है, इस बार हमारा तीनों एजेंडे पे हमने बात कर दी है। और तीनों जो बच्चों का ये परेशानियां है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट जो इश्यूज है, हमारे बाकी जो इश्यूज है, उस पर भी बातचीत हो और जल्द से जल्द जो है इन मसाइल का कोई ना कोई हल निकले। ये ज़ाती तौर पे भी एमएचए से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मेरी गुजारिश है, इस बार ये जो मीटिंग हो, एक फ्रूटफुल मीटिंग हो और लद्दाख के आवाम के मुताबिक जो है इसमें कोई हल नहीं। क्वेश्चन सर, इससे पहले कुछ खबरें आ रही थी कि एपेक्स केडीए के जो एचपीसी के मेंबर्स के साथ एमएचए के कुछ लोगों ने जम्मू में भी बातचीत किया है। क्या बातचीत हुआ है वहाँ पे? कुछ डिसीजन मेकिंग वाला बातचीत हुआ? साइड लाइन पे वही जो मैंने आपको बता दी, उसमें रिजर्वेशंस में कैसे होंगे, क्या क्या क्राइटेरियाज है, बाइफर्केशंस कैसे होगी, 80% एसटी के लिए, 4% एएलसी के लिए है, 1% एससी है, 10% ईडब्ल्यूएस है, रिमेनिंग 5% आपका जनरल कैटेगरी के लिए। फिर इसके बाद डोमिसाइल पे हमारी इनके साथ मीटिंग हुई, इसमें होम ज्वाइंट होम सेक्रेटरी भी वहाँ पे थे और होम के वहाँ पे स्पेशल डायरेक्टर्स भी थे। वहाँ पे कैटेगरी के लिए हमने डोमिसाइल्स पे 89 हमारी कट ऑफ डेट है, उससे आगे पीछे हम नहीं जाएंगे। और रिजर्वेशन के जो मैंने आपको बाइफर्केशंस करके डाटा दे दिए, उस पर बात हुई और ये चीजें हम कन्वे कर चुके हैं। यानी ये तकरीबन हम मार्च में इनको कन्वे कर चुके हैं। फिर इसके बाद अप्रैल में इनके साथ मीटिंग हुई, उस वक्त भी हम कन्वे कर चुके हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि 20 तारीख के मीटिंग में कंक्रीट हमारे पास डॉक्यूमेंटेशंस में कोई ना कोई चीजें हाथ में आनी चाहिए। सर, तकरीबन 3 महीने का गैप हुआ है केडीए एपेक्स और एमएचए के साथ जो डायलॉग होना था, तो इस बीच में स्पेशली केडीए और एपेक्स का इतना यानी मीटिंग्स या यूँ कहें कि पब्लिक के साथ इतना कॉन्फिडेंस अपील करते हुए नहीं दिखा। आवाम में दुश्वारी बहुत थी कि अब केडीए और एपेक्स भी इतना लीडरशिप जो है आगे नहीं बढ़ रहा है, तो इसके ऊपर आप क्या मैं कहना चाहेंगे? एक चीज आपको क्लियर कर दूं, जैसा कि अभी आपके साथी ने कहा, हम 4 मार्च को ही एपेक्स और केडीए की कोर कमेटी वहां पर मिली। उससे पहले हमारी एपेक्स और केडीए की कोर कमेटी की मीटिंग हुई। उसके बाद 4 अप्रैल को भी हमारी एपेक्स और केडीए की पूरी वर्चुअल हमारी मीटिंग हुई है। ये मिलते रहते हैं, लेकिन अभी तक जितने भी चीजें डिले हुआ है और डिले टैक्टिस की गई है, ये होम मिनिस्ट्री की तरफ से है और यूटी एडमिनिस्ट्रेशन की जो इंटरफेरेंस है, सारी चीजें मैं फिर एक बार आपको क्लियर कर दूं, ये यूटी एडमिनिस्ट्रेशन की स्पेशली हमारी चीफ सेक्रेटरी जो इंटरफेरेंस करा के ये चीजें कर रहे हैं, उसकी वजह से ये सारी चीजें डिले होने का खतरा है। इसीलिए हम अभी सोच रहे हैं ये 20 तारीख की जो मीटिंग है उसमें फाइनल आउटकम हमें आ जाए। लालू साहब, एक्स एमपी की तरफ से एक स्टेटमेंट काफी सर्कुलेट हो रहा था कि 1954 में जो डोमिसाइल है उस बेसिस पे जो है होम मिनिस्टर बातचीत कर रहे हैं, तो क्या रिएक्शन आप देना चाहेंगे? देखिए, ये वाला जो 1954 की बात जो हमने सुनी, वो हमने पहली बार सुनी। ऐसा बात तो हमने पहले कभी सुना नहीं था। तो अगर ये बात सही है, मान लेते हैं हम 1954 का उन्होंने ऑफर दिया है होम मिनिस्ट्री में, तो हम बिल्कुल राजी हैं, उसको हम मानेंगे, उसको वेलकम करते हैं। 1954 का कट ऑफ डेट रखें आप, तो हमारे लिए ज़्यादा बेहतर है 1989 से, तो इसको तो हम वेलकम करते हैं। इसमें अभी मीटिंग में भी हमारी डिस्कशंस हुई है और बीजेपी लेह के जितने भी मेंबर्स हैं बढ़ चढ़ के इस चीज को ये हाईलाइट करने की कोशिश कर रहे हैं।
हम इनको अपनी तरफ से केडी और एपेक्स की तरफ से हम खुद यहां से इनको ये कह रहे हैं, अगर 54 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मान ली है तो पूरा एपेक्स और केडी आपके साथ है। आप 54 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से यस करा के डोमिसाइल बना के ले आए, सबसे पहले एपेक्स और केडी वेलकम करें। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया।